آج پھر میرے شوہر نے مجھے دھتکار دیا تھا اور خود گھر سے چلا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ میں ایسی بدنصیب لڑکی تھی کہ جس کا شوہر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا اور ہر بار میرے سامنے جانے پر ہی غصے سے مجھے اپنے سامنے سے ہٹ جانے کو کہتا تھا۔ شوہر کی ناپسندیدگی کے باوجود آج بھی میں نے نیا جوڑا پہن کر خوب دل لگا کر تیاری کی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میں کوئی کمصورت یا بددل لڑکی تھی، بلکہ میرے حسن کی تو لڑکیاں بھی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ اور زبان ہوتے ہی جو جملہ اپنے بارے میں مجھے کثرت سے سننے کو ملتا تھا وہ یہی تھا کہ میں ایک مکمل اور نہایت خوبصورت لڑکی ہوں جس سے نظریں چرانا ناممکن ہے۔ میں اپنے اس حسن پر نازا رہتی تھی، مگر اپنے شوہر کے رویے پر میں اپنے حسن کو پہلی بار مزید نکھارنے کی تگدو میں رہنے لگی تھی۔ میں جو ایک بار چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی مار لیتی تو جلد چمکنے لگتی تھی۔ اب میک اپ کر کر کے پاگل ہو جاتی تھی، مگر میرا شوہر میری طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے شک تھا کہ میرے شوہر نے شاید مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ آج جب میں نے نیا جوڑا پہنا تھا تو وہ سرخ رنگ کا سوٹ میری سفید رنگت کو مزید چمکا گیا تھا۔ میں نے اپنے سلکی بال کھول کر ایک کاندھے پر ڈال رکھے تھے اور چمکتی ہوئی آنکھوں میں جان بوجھ کر کاجل کی موٹی دھار لگائی تھی، کیونکہ کاجل لگانے سے میری سرمئی آنکھیں مزید شہرزدہ لگتی تھی۔ میں جب ایسی تیاری کر کے اپنے شوہر کے پاس کمرے میں جانے لگی تو مجھے امید تھی کہ میرا شوہر کم سے کم آج کے دن مجھے نظر انداز نہیں کر پائے گا اور ضرور متوجہ ہو جائے گا۔ میں اس سوچ سے اتنی خوش ہو گئی تھی کہ میرے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ اور سرخی چھلکنے لگی تھی۔ میرا شوہر حسب معمول اپنے کمرے میں بیٹھا جانے کون سی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں ڈھیروں ڈھیر خوشبو لگا کر جب اپنے شوہر کے قریب گئی تو بے ساختہ چونک گیا تھا۔ میں اس کے چونکنے پر خوش ہو گئی تھی، مگر اس نے اچانک کتاب زور سے بند کی اور اتنی زور سے میز پر پٹک کر رکھی کہ میں اچھل کر رہ گئی تھی۔ میری خوشی خوف میں بدل گئی، کیونکہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میرا شوہر میری حرکت پر غصے میں آ گیا ہے۔ میں بھی اپنے شوہر کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتی تھی کہ وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے کی بجائے کرسی کو ٹھوکر مارتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ میں دم بخود رہ گئی تھی۔ آخر میرے شوہر کو میرے وجود سے اتنی الجھن کیوں تھی؟ میں اپنے شوہر سے یہی سوال کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میری شادی کرتے ہوئے میری پریشانی پر میرے باپ نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ لڑکا اچھا بھی بہت ہے اور تمہیں بہت دل سے اور خوشی سے اپنا رہا ہے، اس لیے وہ تمہاری قدر بھی کرے گا۔ میرے باپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے اپنی محبت میں ہی شادی کی تھی۔ جس شخص کو اپنی بیوی سے محبت ہو اور اس کی بیوی خوبصورت بھی بہت ہو تو ایسا شخص اپنی بیوی کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ میں بھی پہلی رات ہی اپنے شوہر کے رویے پر غمزدہ رہ گئی تھی۔ میں آج بھی اپنے شوہر کے یوں کمرہ چھوڑ کر جانے پر اس کے پیچھے گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اپنا حق پا کر رہوں گی اور اپنے شوہر سے سوال کروں گی کہ وہ مجھے نظر انداز کیوں کرتا ہے۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید اسے میری کوئی بات بری لگی ہوگی اور وہ مجھ سے ناراضگی میں ایسا کر رہا ہوگا۔ میں اسے منانے کو بھی تیار تھی اور اپنی ناکردہ غلطی پر معافی بھی مانگنا چاہتی تھی، مگر مجھے سچ کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر اپنے شوہر کے پیچھے گئی تو میرا شوہر غائب تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں پورا گھر چھان مارا اور تب مجھے جو بات کا اندازہ ہوا وہ مجھے ساخت کر گیا تھا کہ میرا شوہر گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ بات میری تذلیل تھی اور مجھے دکھ میں دھکیل گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے لیے اتنی تیار ہوئی تھی اور وہ میری کوشش پر گھر ہی چھوڑ گیا۔ آخر ایسا کیا جرم ہوا تھا مجھ سے؟ میں کیوں ہر بار رد کی جا رہی تھی؟ میں اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نظر انداز ہونا کسی عورت کو پسند نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک عام سی لڑکی تھی، مجھے بھی توجہ چاہیے تھی اور محبت بھی، مگر مجھے میرا شوہر جیسے ٹھکرا رہا تھا، وہ جیسے مجھے زندہ مار دینے پر تلا تھا۔ میں پوری رات اسی غم میں روتی رہی۔ میں نے خدا داد، نزاکت اور ہر ایک سے ملنے والی تعریفوں کے باوجود خود کو ہمیشہ اپنے ہمسفر کے لیے امانت کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکے کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا اور نہ ہی کسی کو محبت کا جواب محبت سے دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے جذبات کسی غیر مرد پر لٹاؤں۔ میں محبت کی چابی رکھتی تھی اور مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر صرف مجھ سے محبت کرے گا اور مجھے کبھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ شاید کوئی عام مرد میرا شوہر بنتا تو ایسا ہی ہوتا، مگر مجھے جو انسان ملا وہ پہلے ہی روز مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ میں جو دلہن بن کر سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی تھی، رخصت ہوئی تو دوستوں کی چھیڑ چھاڑ پر دل دھڑکنے لگا تھا۔ ایک انجان شخص کی زندگی میں شامل ہونے کا جو خوف مجھ میں پیدا ہوا تھا وہ میرے باپ نے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔
मैं अपने बाप की बहुत लाडली और अजीज तरीन बेटी थी। हम सिर्फ 2 बहन भाई थे। भाई नव उम्री में ही दूसरे मुल्क पढ़ाई के लिए चला गया था और मैं अपने बाप के पास अकेली रह गई थी। मेरा बाप एक कॉलेज में पढ़ाता था। मैंने हमेशा तवज्जो और नरमी देखी थी, इसलिए मुझे डर था कि कहीं मेरी जिंदगी में शामिल होने वाला मर्द मुझ पर गुस्सा ना करे या सख्त मिजाज ना हो। मगर मेरे बाबा के मुताबिक वो इंसान मेरे बाप जैसा ही था और उसने मुझे मेरी आदत जानकर दिल से कबूल किया था। वो लड़का मेरे बाप का पुराना स्टूडेंट था, इसलिए मेरे बाप को उसके बारे में सब पता था। मैंने शादी से पहले अपने शौहर को सिर्फ तस्वीर में देखा था। वैसे तो हमारे घर का माहौल इतना पाबंद नहीं था, मगर फिर भी मुझे अपने होने वाले शौहर से मिलने में झिझक महसूस होती थी और मेरे शौहर ने भी कभी मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। मैंने शादी का जोड़ा लेने की बात की तो मेरे बाप ने बताया कि शादी का सूट मेरा शौहर अपनी मर्जी से लेना चाहता है। मैं खामोश हो गई, मगर तब मुझे हैरत हुई थी जब मुझे शादी का जोड़ा देने के लिए कोई ससुराली औरत आने की बजाय मेरा देवर आया था। मेरा देवर बहुत खुश मिजाज और हंसमुख सा लड़का था। वो मेरे शौहर से 2 बरस छोटा था। उसने मुझे शादी का सामान दिया और बताया कि उसका भाई शर्मीला इंसान है, इसलिए वो अपनी होने वाली बीवी से नहीं मिल रहा, मगर वो शादी हो जाने के बाद मेरा बहुत ख्याल रखेगा और खुश रखेगा, क्योंकि वो नेक इंसान है जिसने मुझसे पहले कभी किसी लड़की को देखा तक नहीं था। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा शौहर भी मेरे जैसा इंसान ही था। शादी के दिन मैं हर खौफ बुलाए रुखसत होकर अपने शौहर के घर पहुंची तो एक सवाल मुझे बार बार तंग करने लगा कि मेरे इस्तकबाल के लिए कोई भी मौजूद क्यों नहीं। शायद मेरा शौहर कोई लावारिस मर्द था, क्योंकि मैं रुखसती से लेकर शौहर के घर पहुंचने तक अपने शौहर के अलावा कोई भी मर्द या औरत नहीं देखे थे। क्योंकि मैंने रुखसती से लेकर शौहर के घर पहुंचने तक अपने शौहर के अलावा कोई भी मर्द या औरत नहीं देखे थे। बाकी सबकी तो मुझे खबर नहीं थी, मगर मेरा देवर भी कहीं नजर नहीं आया था। मुझे हैरत हो रही थी कि सगा भाई अपने बड़े भाई की शादी में क्यों नहीं था, वो भी ऐसा भाई जो शादी की तैयारी में पेश था और अपने भाई के साथ ही रहता था। हर बात मुझे चौंका रही थी। सबसे बढ़कर जो बात मुझे बुरी लगी थी वो ये कि मैं अपने कमरे में बैठी थी और वहां कोई सेज या सजावट नहीं थी। मेरी शादी मेरे ही लिए सवालिया निशान बन गई थी। ये कैसी शादी थी जिसमें कोई शामिल नहीं था और ना ही कोई सजावट या खुशी का इजहार नजर आ रहा था। मैं अपने शौहर से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर उस रात इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मुझे एक और झटका लगा था, क्योंकि दिन ढलने वाला था। मैं इतनी देर सोई रही, मगर मुझे ना किसी ने जगाया, ना ही कोई घर में नजर आ रहा था। साफ जाहिर था कि मेरा शौहर पहली रात कमरे में ही नहीं आया था। मैं इस बात पर जितना हैरान होती कम था। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर ना मैंने अपना शौहर देखा, ना शायद मेरे शौहर ने मुझे इस सजावट और 16 सिंगार में देखा था। मैंने उदासी से अपना हार सिंगार खत्म किया और सादा लिबास पहनकर बैठ गई। इस खाली घर में बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मुझे समझ नहीं आई कि घर में सन्नाटा क्यों था और मेरा शौहर मुझे छोड़कर कहाँ गया था। शाम होने पर मजबूरन मैंने अपने बाप को कॉल मिलाई। मैं सोच चुकी थी अपने बाप से शिकायत करूंगी कि मेरा शौहर कैसा अजीब मर्द है जो पहले दिन की दुल्हन को घर में अकेला छोड़कर जाने कहाँ गया है। और कुछ मुझे अपने बाप से भी गिला था। मैंने हमेशा देखा था कि लड़की ब्याह कर जाती है तो मायके वाले अगले दिन नाश्ता लेकर उसके घर जाते हैं। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी, सिर्फ एक भाई और एक बाप मेरी पूरी फैमिली थी। हम घर के 3 अफराद थे और वो भी इस मौके पर साथ नहीं थे। मेरा बाप मुझे ना मिलने आया, ना ही नाश्ता देने आया था। मैं शिकायत लगाने का सोचकर कॉल मिलाती रही, मगर मेरे अब्बू ने कॉल ही अटेंड नहीं की। मेरा भाई मुल्क से बाहर रहता था और उससे मेरी कभी इतनी दोस्ती नहीं रहती थी कि मेरी शादी पर वो आता। मैं सर डाले बैठी थी। न शौहर घर आया था, न बाप ने कॉल अटेंड की थी। मेरा दिल अजीब वसवसों में गिर गया था। रात हुई तो मेरा शौहर घर आ गया। मैंने उससे बात करने की और शिकवा करने की कोशिश की, मगर वो मुझे नज़रअंदाज करता किचन में गया और अपने साथ लाया खाना बर्तन में निकालकर मेरा हिस्सा वही किचन में रखकर अपने कमरे में चला गया। मैं उसकी हरकत पर हैरान हुई थी, मगर तब भूख की वजह से मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया और चुपचाप खाना लेकर बाहर बैठी अकेली खाने लगी। अभी मैं खाना खा रही थी कि अचानक मेरे शौहर ने आकर चाय का कप मेरे सामने रखा और इससे पहले कि मैं सर उठाकर कोई बात करती वो पलट कर चला गया। मैं थकी हुई थी और अपने बाप से बात ना होने की वजह से परेशान थी, इसलिए चुपचाप चाय पीने लगी। चाय पीकर मैं उठी ताकि जाकर अपने शौहर से बात करूं, मगर अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर थी और दिन निकल आया था।
मुझे कमरे में यकीनन मेरा शौहर लाया था, मगर वो खुद उस वक्त भी मौजूद नहीं था। तब मुझे पता चला कि उसने मुझे चाय में नशा मिलाकर दिया था ताकि मैं मजीद उसके सर पर सवार न हूं और अपने कमरे में सोई पड़ी रहूं। मेरा दिमाग उलझने लगा था और कुछ दिन मजीद ऐसे ही गुजरते चले गए। मेरे असाब चटकने लगे थे। मेरा बाप जाने कहाँ गायब हो गया था और शौहर अजीब अजनबियों जैसा रवैया दिखा रहा था। तब मैंने थक कर एक दिन अपने भाई को कॉल कर दी। मैं उससे मदद मांगना चाहती थी। मुझे उम्मीद थी मेरी परेशानी सुनकर वो मुझे हमारे अब्बू के बारे में भी बताता और मेरे शौहर से भी बात करता, मगर उसने कॉल पर मुझे जो बताया वो मेरे सर पर पूरे घर की छत गिरा गया था। मेरी परेशानी पर मेरा भाई बोला कि हमारे अब्बू किसी जरूरी काम की वजह से मेरी शादी के तुरंत बाद मुल्क से बाहर चले गए हैं और फिलहाल वो बात भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं उन्हें तंग न करूं। और जब मैंने शौहर का रवैया बताया तो वो बोला कि तुम्हारे पास अब एक वही शख्स है जिसके पास तुम्हें रहना है, इसलिए उसे तंग मत करो और जैसे वो रह रहा है उसे रहने दो। वो तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा है, तो ऐसे हालात में इतना ही काफ़ी है। मेरा भाई अपनी बात करके कॉल काट गया था और मैं मुजस्सिमा बनकर बैठी रह गई थी। मेरे बाप का ऐसा कौन सा काम था कि वो यूं अचानक चुपचाप चला गया और राबता भी नहीं किया। मुझे तब शिद्दत से रोना आया था। मेरी जिंदगी अचानक से ही उलझ कर रह गई थी। कुछ दिन तो मैंने रो धोकर गुजार दिए, मगर फिर मुझे अपने शौहर का यूं दूर दूर रहना खलने लगा। मैं आम सी लड़की थी। शादी के बाद भी मुझसे जैसे शौहर गुरेज बरत रहा था। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने शौहर को मुतवज्जा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर संभालने लगी। मेरा शौहर पहले रोज से बना बनाया खाना घर लाता था, इसलिए मैंने घर में खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैं रोजाना जायकेदार खाने बनाकर अपने शौहर का इंतजार करती थी, मगर मेरा शौहर आता तो अपने लिए खाना लेकर खुद खाने लग जाता था। मैं जब भी उसके सामने जाती या मुतवज्जा करने की कोशिश करती तो वो अजीब सी बात बोलता था जो मुझे घबराहट में मुब्तिला करती थी। वो बोलता कि नकाब कर लो वरना मुझे गुनाह मिलेगा। वो नमाजी और नेक इंसान था, मगर मुझे हैरत थी कि वो अपनी बीवी को देखने से कैसे गुनाहगार हो सकता था। एक घर में रहकर भी वो मुझसे मुकम्मल पर्दा रखता था और मुझे देखता तक नहीं था। मैं घर में जो भी काम करती वो करने देता ताकि मैं उसे तंग न करूं। मैं चाहती थी मेरा शौहर मुझे देखे, मुझे सराहे। शौहर की तवज्जो और मोहब्बत पर हर बीवी का हक होता है और ये हक तो अल्लाह ने भी औरत को दिया है, मगर मेरा शौहर पहले दिन से मेरा ये हक खा रहा था। मैं चाहे जितना भी बन संवर लेती वो मुझे तवज्जो नहीं देता था और इसी बात का मुझे सदमा था। हमारी शादी को 2 हफ्ते गुजर गए थे, मगर आज भी मेरी कोशिश पर मेरा शौहर मेरे सज संवर कर सामने जाने पर मुतवज्जा होने की बजाय मुझे अनदेखा कर गया था और मुझसे बचने के लिए वो घर से ही चला गया था। मैं अपने शौहर की इस बेहिसी पर मातम कनासी अपने कमरे में पड़ी रही थी। मैं अपनी खूबसूरती के बावजूद शौहर की तवज्जो नहीं पा सकी थी और इस बात पर मुझे लगने लगा कि मैं दुनिया की सबसे नाकाम औरत हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे पछतावा होने लगा कि काश मैं इस इंसान से शादी करने की बजाय अपने चाहने वालों में से किसी को चुन लेती, तो शायद आज मेरी जिंदगी अलग होती और मैं अपने शौहर की मोहब्बत और तवज्जो में खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती। मुझे जाने किस गुनाह की सजा मिल रही थी। मैं इतनी ईमानदारी से जिंदगी गुजारने के बाद भी अकेली रह गई थी। मेरा दुख बांटने के लिए कोई अपना भी मेरे पास नहीं था। मैंने वो रात भी रोते हुए गुजारी और सुबह उठी तो सोच लिया कि मैं अपने शौहर से 2 टूक बात करूंगी। अगर मेरा शौहर मुझे कबूल नहीं कर रहा था तो मैं तलाक लेने को तैयार थी। मैंने उस दिन घर का कोई काम नहीं किया था। मुझे लगा कि इस बात पर मेरा शौहर मुझसे जरूर सवाल करेगा, मगर मेरा शौहर सुबह घर से निकला और सारा दिन वापस ही नहीं आया था। साफ लग रहा था कि वो मुझसे बच रहा था और मैं मजीद ऐसी बेकदरी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी, इसलिए 2 टूक बात करने का सोचकर अपने शौहर का इंतजार करने लगी। शाम हुई तो भूख से मेरा बुरा हाल होने लगा। मैं किचन में अपने लिए खाना बनाने गई तो ऐन उसी वक्त मेरा शौहर घर आ गया और आते ही अपने मामूल के मुताबिक मेरा सामना किए बिना अपने कमरे में बंद हो गया। पहली बार मैंने खुद खाना खा लिया और उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा मर्द काबिल इज्जत था ही नहीं जो अपनी बीवी को उसका हक न दे। रात हुई तो मैं दबे पांव अपने शौहर के कमरे में जा पहुंची। उस वक्त मेरा शौहर ईशा की नमाज अदा कर रहा होता था। रात की नमाज वो मेरी वजह से घर में ही पढ़ता था, क्योंकि शादी के बाद शुरू के दिनों में मैंने उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोल दिया था कि मुझे रात के वक्त अकेले में डर लगता है। उसके बाद से वो ईशा की नमाज घर में अदा करता था, मगर मुझे अपने कमरे में नहीं आने देता था।
मैं चाहती थी कि वो नमाज अदा करके फारिग हो तो उसके सोने से पहले मैं बात कर लूं, मगर जब मैं कमरे में गई तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरा शौहर तो नमाज अदा करके पहले से सो चुका था। मैंने मौके से फायदा उठाते हुए लाइट जलाई और अपने शौहर के सामने चली गई। जागते हुए या दिन के वक्त मेरा शौहर मेरे सामने आने से गुरेज बरतता था और अपना चेहरा भी छुपा लेता था, इसलिए उसे सोया हुआ पाकर मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरा शौहर था ही नहीं। अगर वो कोई अनजान शख्स होता तो मैं उसे अपना शौहर मान भी लेती, मगर सामने मौजूद मर्द को मैं अच्छे से जानती थी और यही बात मेरे होश उड़ा गई थी। मैंने अपनी शादी का तकरीबन 1 महीना उस इंसान के साथ गुजारा था जो मेरा शौहर था ही नहीं। मैं अचानक हवास खोते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर गई। शायद मैं दिमागी तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी थी, या फिर मेरे आसाब को ये झटका बहुत शिद्दत से लगा था, इसलिए मैं ताब नहीं ला सकी और बेहोश हो गई थी। मैं होश में आई तो मुझे एकदम सब याद आया। मैं झटके से उठकर बैठ गई। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। मैं समझ गई मेरे बेहोश होने पर उसने जाग कर मुझे बिस्तर पर सुला दिया, मगर खुद हमेशा की तरह गायब हो गया। मैं सिर हाथों पर गिराए रोने लगी। मुझे लाड़ प्यार से पालने वाले बाप ने मेरे साथ ये क्या कर दिया था। मुझे लगा मैं भरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। खाविंद बीवी जैसे इतने पाकीजा रिश्ते को इस्तेमाल किया गया था। अगर मुझे अंदाजा होता कि शादी के नाम पर मेरे साथ क्या होने वाला है तो शायद उसी दिन रुखसत होने की बजाय खुदकुशी कर लेती। दुख की बात तो ये थी कि अभी मैं ना किसी से सवाल कर सकती थी, ना ही किसी को बता सकती थी। भाई का नंबर मैं उस दिन बात होने के बाद गुस्से में डिलीट कर चुकी थी, और अगर वो नंबर मौजूद होता तो तब भी मुझे यही लगता कि मेरा भाई मुझ पर यकीन ना करता और यकीनन मुझे ही पागल या गलत समझ लेता। मगर मैं ऐसे खामोश भी नहीं रह सकती थी। मैं अपने शौहर को ढूंढना चाहती थी। मुझे अपने शौहर का नाम याद था, क्योंकि निकाह के वक्त मैंने अपने शौहर का नाम बहुत अच्छे से सुना था। मैं शादी के बाद से कभी उस घर से बाहर नहीं गई थी, और मुझे यकीन था कि अगर मैं घर से निकलकर लोगों से अपने शौहर के बारे में पूछती तो यकीनन कोई ना कोई मुझे जरूर सच्चाई बता देता। मैंने खाली घर का फायदा उठाते हुए बाहर का दरवाजा खोला और गली में झांका। साथ वाले घर के दरवाजे से कोई औरत बाहर निकल रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने झिझक कर उस औरत से कहा कि मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या वो इसी मोहल्ले में रहती है? तो औरत नरमी से बोली कि हाँ, ये मेरा घर है और तुम आओ, हम बैठकर बात कर लेते हैं। मैं जल्दी से उस औरत के साथ उसके घर में चली गई। उस औरत ने मुझे बैठाया और बोली कि हम सब मोहल्ले वाले सोच रहे थे कि इस घर में आने वाली लड़की शायद लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, इसलिए कभी घर से बाहर नहीं निकली। उस औरत के सवाल पर मुझे रोना आने लगा। अब मैं उसे क्या बताती। पिछले कई दिन से मैं किस मुश्किल का शिकार हो रही थी। मैंने बातों बातों में अचानक उस औरत से अपने शौहर के बारे में पूछा तो वो मेरे शौहर के नाम पर ठिठक सी गई और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मेरे सवाल पर यकीन ना आ रहा हो। मैंने उसकी हैरत की वजह पूछी तो वो कुछ बेयकीनी से बोली कि क्या तुम नहीं जानती वो कहाँ गया? उस औरत का लहजा मुझे अनहोनी का एहसास दिला रहा था। मैंने डरते हुए नहीं में सर हिलाया तो उस औरत ने जो बात मुझे बताई वो मेरी रूह को कंपा कर रख गई थी। वो औरत कुछ मुरझाए हुए अंदाज में बोली कि वो बेचारा तो अपनी शादी से 1 दिन पहले ही मर गया था। उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही मर गया। हम सबको उसकी जवान मौत का बहुत सदमा पहुंचा था। यकीन नहीं आता कि उसकी मौत हो गई है। वो औरत अफसोस से जाने क्या क्या बोल रही थी और मैं साख्त सी बैठी थी। मेरा शौहर मर चुका था और मुझे खबर ही नहीं हुई थी। हमारा निकाह हमारी शादी से 3 दिन पहले सादगी से हुआ था। अगर वो शादी से 1 दिन पहले मरा था तो फिर वही मेरा शौहर था। मैं बेवा होने के बाद रुखसत होकर आ गई थी और एक नामहरम के साथ रहकर उसकी तवज्जो तलब करती रही थी। मुझे लगा मेरा सांस बंद हो जाएगा। न जाने मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं उस औरत को बोलता हुआ छोड़कर घर भाग आई। मेरा वजूद लरज रहा था। शाम हुई तो मैं उजड़ी हुई सी हालत में उस शख्स के सर पर जा खड़ी हुई। वो मर्द जो मेरा देवर था और पिछले 1 महीने से मेरा शौहर बनकर मेरे साथ रह रहा था, वो मामूल के मुताबिक अपने कमरे में बंद था। मैंने झटके से दरवाजा खोला और जाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो मेरी इस अचानक हरकत पर बौखला गया था। मैं गुस्से से उस पर चीख रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की थी। मेरे शौहर की मौत के बाद वो मेरे घर वालों को धोखा देकर कैसे मुझे बजा लाया था। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सब पर मेरा बाप क्यों खामोश रहा था और मेरा भाई बजाय इसके कि मुझे समझाता और मेरी परेशानी का हल निकालता, वो भी मुझे यही बोला था कि मैं चुपचाप उस नामहरम मर्द के साथ रहूं। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि सबने मिलकर मेरे साथ ये सब क्यों किया था। मैं अपने देवर पर गुस्सा हो रही थी और वो सर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा हुआ था।
मैं बुरी तरह रोने लगी और उसे बुरा भला कहने लगी। तब उसने मुझे कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसा करने को कहा था और मैंने अपने वादे का पास रखा और तुम्हारी हिफाजत की है। वो बोला कि मैं जानता था हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैंने हमेशा पर्दा रखा और कभी नाजायज हरकत नहीं की थी। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई। वो सच बोल रहा था, उसने कभी मुझे इस्तेमाल नहीं किया था और मेरा पर्दा कायम रखा था। मैं सच से नावाकिफ थी, इसलिए कई बार उसके सामने गई, मगर वो नजर झुका जाता था। मेरे रोने पर उसने बताया कि उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, सिर्फ वो 2 भाई उस घर में रहते थे और उसका भाई मेरे बाप का स्टूडेंट था। उसका भाई हादसे में मरा तो वो सदमे से अपने हवास खोने लगा था। अगले दिन उसने खुद को संभाला और वो रुखसती से पहले मेरे बाप के पास गया और उसे बताया कि उसका भाई मर चुका है और शादी नहीं हो सकती। मगर वो मेरे बाप से मिला तो मेरा बाप पहले से ही परेशान बैठा था। मेरे बाप ने उसे बताया कि उनके कॉलेज में किसी लड़के को उन्होंने सजा दी तो वो नहीं जानते थे कि वो लड़का दिल का मरीज है और उसे सजा के दौरान दिल का दौरा पड़ गया। वो लड़का किसी जमींदार घराने से था। वो लोग मेरे बाप के दुश्मन बन गए और उन्हें मारने पर तुल गए। मेरा बाप मेरे लिए परेशान था। उन्होंने मेरे देवर से कहा कि अभी वो खामोशी से दुल्हन ले जाए और उसकी हिफाजत करे। मामला सुलझ जाने पर वो खुद मुझे सच बताते और घर ले जाते, मगर उन्हें मौका नहीं मिला और मेरी रुखसती से अगले रोज सुबह सुबह पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मेरा बाप तब जेल में था और इसी वजह से भाई ने भी मुझे खामोश रहने का कहा था। मेरा देवर सब बताकर खामोश हो गया और मैं सख्ते की कैफियत में चली गई। मुझे परेशानी से बचाने के लिए मेरे बाप ने ये सब किया था। मैं सब सुनकर रोने लगी तो मेरे देवर ने मुझसे कहा कि मेरे बाप का केस खत्म होने वाला है और वो जल्द आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि उस स्टूडेंट लड़के ने मेरे बाप को बेकसूर कहा था और बताया था कि मेरा बाप उसकी बीमारी के बारे में नहीं जानता था। इस बात के चंद दिन बाद ही मेरा बाप आज़ाद होकर आ गया था। मैं अपने घर चली गई और वक्त तेजी से गुजरने लगा। अब मेरी महीने बाद फिर से शादी है और इस बार मेरी शादी मेरे इस देवर से हो रही है, क्योंकि मेरे बाप का कहना है कि जो मर्द एक नामहरम लड़की के साथ रहकर भी उसकी इज्जत की हिफाजत करे वही मर्द काबिले भरोसा हो सकता है और मुझे अपने बाप से पूरा इत्तेफाक है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।